तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 दैट इज़ फ्रैक्शंस। हमने क्लास थर्ड में भी पढ़ा है फ्रैक्शंस। हमें पता है फ्रैक्शंस क्या होता है, एनी नंबर विच इज़ रिटन इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, सो लेट्स रिकॉल इट कि हमने थर्ड क्लास में क्या पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये बोल रहा है कि 2/5 ये फ्रैक्शन है, इसको हम कैसे बोलते हैं, हाउ डू वी से इट। We say 2 parts of 5. Let's understand what is the meaning of this. इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास एक होल सपोज चॉकलेट है, हमने उसे कितने पार्ट्स कर दिए, हमने उसके कर दिए 5 पार्ट्स, राइट। तो उस 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हमने शेड कर दिए, लाइक हमने सपोज ब्रेक कर दिए। तो हमने कितने पार्ट्स लिए, हमने 5 पार्ट्स थे टोटल, उसमें से 2 पार्ट्स चॉकलेट के ले लिए। So that's why it is called 2 parts of 5. Like total is 5 and out of that we have taken 2. वैसे we'll try as a practice. Second question is 1/3 and 2/4. Try to do it by yourself. As we can see, the student have done. The 1/3 will be written as 1 part of 3 and 2/4 will be written as 2 part of 4. Okay, these diagrams were just understanding. अदरवाइज़ जो डायग्राम बनता है उसमें प्रॉपर डिवीजन होता है, लाइक इक्वल पार्ट सारे बराबर ही होने चाहिए। तो हमने केवल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऐसे रफ डायग्राम्स बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ओके 3/7। जो 3/7 है दिस इज़ अ फ्रैक्शन। इसमें से न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है। सो 3 इज़ द न्यूमरेटर एंड 7 इज़ द डिनोमिनेटर. Likewise, do it yourself. 9/10, which is the numerator and what is the denominator. As you can see, numerator is 3, denominator is 7. Likewise, 9/10, numerator is 9 and denominator is 10. I'll give you one more question. 5/9. Tell me what is the numerator and what is the denominator here. कोई भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है तो बीच में जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नंबर लिखा होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। सो लेट्स रिकॉल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइन वी हैव, like we all have learned in our nursery class only. One is vertical line, the line which is straight and standing, right. One is horizontal line, the line which is sleeping line, straight and sleeping line. So here it is called horizontal line, right. Then what is fraction? We just have recalled what is fraction. It shows the number in fraction, the denominator, this denominator, it shows the number of equal parts the whole has been divided into. Like we have seen a circle, right. This was a whole circle. How many equal parts you will be dividing it? So that is shown by denominator. So this denominator shows the whole has been divided into how many parts. Okay, what does the numerator show? The numerator show how many equal parts of the whole are taken, कि हमने कितने पार्ट्स हमने शेड करे हैं, राइट। और डेसिमल जो होता है वो क्या शो करता है, डेसिमल एक्सप्रेस करता है वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल नंबर. Okay, we'll just practice few questions and then you can understand whole of these concepts by solving those questions. So this is page number 85, the first page of your chapter. Here you can see हमने अभी प्रैक्टिस करा ये क्वेश्चंस, तो आप ये बुक में भी प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छे से अब, कि 1/3 को आप कैसे लिखोगे, राइट. एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या है इन क्वेश्चंस में. In a fraction, the number written above the horizontal line is called what? We just have learned the concept. The dash shows the number of equal parts the number has been divided into. The dash expresses the value of the fractional number. Try to do it and let's check the answer. So after studying the notes, you can attempt all these questions, right? So आप क्या लिखोगे, 1/3 को आप कैसे प्रोनाउंस करते हो, आप लिखो. So 1/3 को आप प्रोनाउंस करते हो 1 part of 3. लाइकवाइज 2/4 को कैसे प्रोनाउंस,
2/4 को आप प्रोनाउंस करते हो 2 पार्ट्स ऑफ 4. हैव यू नोटिस द डिफरेंस कि हमने जब 2/5 का लिखा था तो हमने पार्ट्स लिखा था. वाई? बिकॉज 2 इज़ प्लूरल. जब हमने यहाँ पे लिखा था तो हमने पार्ट ही लिखा है, पार्ट्स नहीं लिखा. क्यों? बिकॉज 1 इज़ अ सिंगुलर नंबर, सिंगल डिजिट. लाइकवाइज यहाँ पे हमने 2 पार्ट्स ऑफ 4 लिखा है. सो एग्ज़ाम में ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए. दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन कि हमको फ्रैक्शन गिवन है, हमें बस बताना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है इन ईच ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस. ट्राई एंड डू दिस. So this was an easy question. 3/7 we have the fraction. The numerator is 3, the denominator is 7. 5/9, the numerator is 5, denominator is 9. 9/10, numerator is 9, denominator is 10. Now we'll attempt these fill in the blanks. जो हमने notes बनाए थे उसमें इन सारे fill in the blanks के answers है. Study the notes before then attempt these questions. It will be easy. फर्स्ट बोल रहा है इन अ फ्रैक्शन द नंबर रिटन अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड. हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन. तो स्लीपिंग लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट ऊपर नंबर रिटन अबव, अबव मतलब ऊपर. तो कौन सा नंबर लिखते हैं हम ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के? न्यूमरेटर. कौन सा नंबर लिखते हैं? न्यूमरेटर. न्यूमरेटर की स्पेलिंग क्या होती है? सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है द डैश शोज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स द होल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू. अच्छा, ये क्वेश्चन आप ढंग से समझना कि ये बोल रहा है कि क्या बताता है कि होल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ. होल का मतलब क्या होता है? दिस HOLE होल नहीं. होल मतलब वन सिंगल थिंग. वो होल सर्कल नहीं, ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये बोल रहा है ऐसी कौन क्या चीज़ है जो बताती है कि ये जो होल्स है ना वो कितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड हुए. मतलब ये जो होल्स हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं. तो क्या बताता है कितने पार्ट्स में डिवाइड है? ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है. तो क्या चीज़ बताती है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है? डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर तो लिखेंगे हम 4, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा? डिनोमिनेटर शो करता है कि एक होल कितने पार्ट्स में, कितने इक्वल पार्ट्स बोल रहा है कि सारे पार्ट्स क्या है? इक्वल. हमने रफ स्केच बनाया तो इक्वल नहीं लग रहा, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, राइट. तो यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर की क्या स्पेलिंग होती है? So now let's move on to the last fill in the blanks, which is saying dash expresses the value of the fractional number. ये जो भी फ्रैक्शनल नंबर है इसकी वैल्यू क्या एक्सप्रेस करता है? तो इसकी वैल्यू क्या एक्सप्रेस करता है? डेसिमल. डेसिमल बताता है फ्रैक्शनल नंबर की क्या वैल्यू होती है. तो डेसिमल की स्पेलिंग क्या होती है? हमने नोट्स में लिखा था. अभी सारे जो स्पेलिंग्स हैं, चाहे न्यूमरेटर हो, डिनोमिनेटर हो, डेसिमल हो, राइट, इन सब की हमको स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, राइट. क्योंकि स्पेलिंग्स के मार्क्स कट जाएंगे. हमको कॉन्सेप्ट आता है, हमको स्पेलिंग्स नहीं आती, तो इट्स ऑफ नो यूज़ इन एग्ज़ाम. नेक्स्ट वी आर हैविंग 3 क्वेश्चंस हियर. विल ट्राई टू सॉल्व इट इन आवर नोटबुक. सो विल जस्ट रीड इट. राइट द फ्रैक्शन फॉर द पार्ट मैंशनड इन द क्वेश्चन. ये बोलो जितने भी क्वेश्चंस है ना उसका हमको फ्रैक्शन लिखना है. फ्रैक्शन हमें समझ में आता है ये क्या होता है? एनी नंबर विच इज़ रिटन in this format, numerator upon denominator. The first question is Jyoti ate 3 toffees out of 5 toffees. What fraction of toffees did she eat? कि ज्योति ने 3 टॉफ़ीज़ खा ली. 8 का मतलब खा ली, पास्ट टेंस. कितनी टॉफ़ीज़ थी टोटल उसके पास? 5. अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में बताओ कि उसने कितनी टॉफ़ीज़ खाई, राइट. सो हमने नोटबुक में क्वेश्चन लिख लिया. ज्योति एट 3 टॉफ़ीज़ आउट ऑफ 5 टॉफ़ीज़. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टॉफ़ीज़ डिड शी ईट? द आंसर इज़ 3/5. क्यों? क्योंकि 5 टॉफ़ीज़ उसके पास टोटल थी, उसमें से उसने 3 टॉफ़ीज़ खा ली. लाइक शी वॉज हैविंग 5 टॉफ़ीज़ एंड उसमें से उसने 1, 2, 3 टॉफ़ीज़ खा ली. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट. नेक्स्ट क्वेश्चन विल रीड इट. A rickshaw puller spends half of his earnings on his children. He earns ₹40 a day. What fraction of money does he spend on his children?
ओके, इट्स अ लेंदी क्वेश्चन बट इट इज़ प्रिटी सिंपल. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी लाइन. ये बोल रहा है एक रिक्शा पुलर जो रिक्शा चलाता है वो स्पेंड करता है हाफ ऑफ हिज अर्निंग. जितनी वो कमाई करता है उसका आधा वो खर्च कर देता है अपने बच्चों पे. फिर ये बोल रहा है ही अर्न्स, वो कितना कमाता है, ₹40, 40 रुपये कमाता है अ डे. एक दिन में वो 40 रुपये कमाता है. वॉट फ्रैक्शन ऑफ मनी डज ही स्पेंड ऑन हिज चिल्ड्रन. अभी बोल रहा है कि वो अपने बच्चे पे कितना पैसा खर्च करता है, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बताओ. राइट, विल ट्राई टू डू दिस इन आर नोटबुक. ओके, हम वापस समझेंगे क्या है. हमने समझा था फ्रैक्शन होता है टोटल. तो टोटल वो कितना कमाता है, 40. और 40 में से उसने कितना स्पेंड किया, कितना खर्च कर दिया, 20. फ्रैक्शन यही तो होता है कि टोटल नीचे आता है और ऊपर जितना यूज़ हो गया वो. सो आंसर क्या होगा, 20/40. राइट. अच्छा, अभी क्वेश्चन होगा कि मैम यहाँ पे 20 तो लिखा ही नहीं था. तो हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि वो जो रिक्शा ड्राइवर है वो अपनी आधी अर्निंग्स, हाफ अर्निंग्स खर्च करता है. आधी क्या हुआ, 40 का हाफ कितना हुआ, 40 का हाफ 20 हुआ. कैसे, हम ये भी कर सकते हैं 40 का हाफ समझने के लिए 40 को 2 से डिवाइड. 2 मतलब क्यों, आधा हो गया ना, 40 का आधा. तो 2 की टेबल में 40 कैसे आता है, 2 2 ज़ा 4, 20. राइट. सो वो अपनी आधी कमाई यानी कि 20 रुपीज़ खर्च कर देता है अपने बच्चों पे, 20/40. लास्ट क्वेश्चन है, अ रोज़ गार्डन हैज़ 200 रोज़ प्लांट्स आउट ऑफ विच 40 plants bear white roses. What fraction of white rose plants are there in the garden? ये बोल रहा है एक रोज़ का गार्डन है जिसमें क्या है, 200 रोज़ के प्लांट्स. रोज़ समझते हो, गुलाब. एक गुलाब का गार्डन है, बगीचा है, उसमें 200 गुलाब के प्लांट्स हैं. उन 200 में से, आउट ऑफ विच का मतलब क्या होता है, इन 200 में से 40 प्लांट्स बियर वाइट रोजेस. मतलब 40 प्लांट्स कैसे रोज़ आते हैं, सफ़ेद रोज़. तो ये पूछा है कितने फ्रैक्शन है वाइट रोज़ के. क्या बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा. फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है कि नीचे हमेशा टोटल आता है. टोटल कितने हैं रोज़ के प्लांट्स, टोटल है हमारे पास 200. अभी 200 में से वो बोल रहा है कि हमारे पास तो 40 है वाइट. वाइट कितने, 40, और टोटल रोज़ कितने, 200. तो आंसर क्या हो गया, 40/200. ठीक है.